Hello, good morning everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good Yes, morning, ma'am. okay, so in the last lecture, charge mechanism is a normally situation is like the supplier of the goods and services pay the tax on supply. But in the reverse charge, what happens? The receiver becomes liable to pay the tax. So chargeability gets reversed in reverse charge mechanism. We have seen that. So this is the example. You have to compare normal charge mechanism and reverse charge mechanism on the levy of GST. In normal charge, you make a payment with GST, and in reverse charge you make a payment without GST, because in reverse charge you deposit the GST to directly the government. So there was the list of people liable to pay GST. So यहाँ पे था सप्लायर और रिसिपिएंट. सो रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ता है, चार्जेबिलिटी रिवर्स हो जाता है. उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 3 सेक्शन है. सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5. सो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 जो है वो नोटिफाई किया हुआ है, गवर्नमेंट ने लिस्ट बना के दिया हुआ है कि ये लिस्ट है. अगर आप इसमें से कुछ भी सेल करते लाइक गुड्स परचेज करते हो या सेल करते हो कुछ भी है तो वो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा उसके ऊपर. फिर सेक्शन 9(4) क्या था? अगर आप रजिस्टर हो और आपने अनरजिस्टर्ड डीलर से सामान खरीदा है तो वो रिवर्स चार्ज में आता है. तो आपको रजिस्टर हो तो आपको रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करना पड़ेगा. फिर अगर आप ई कॉमर्स से कुछ सप्लाई कर रहे हो तो सेक्शन 9(5) में आता है वो, तो आपको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज में. ओके, so next is when reverse charge is applicable, just supply from unregistered dealer to registered dealer, supply through e-commerce operator, supply of certain goods and services specified by CBEC, Central Board of Excise and Custom. So this is the list. We have seen the list also. So this is the list of goods specified under section 9 subsection 3. First is cashew nuts, second is tendu leaves, tobacco leaves, silk yarn, raw cotton, and supply of goods, and last is import of goods, supply of lottery and import of goods. See, when you do import of goods, now there is the IGST will be charged, so you have to pay in reverse charge. Okay. So next is list of services specified under 9 section 9 subsection 3. So this is the first is GTA service, goods transport agency services, legal services by advocate, and the third one is import of service. You can say like service given by a person located in non-taxable territory. That means you are in India and you are taking the service from outside India. That is import of service. Fourth one is a director of a company or body corporator. If director is giving you service, it will become you have to pay the tax under RCM. If you purchase anything like you downloaded anything, online information you have purchased like database. As I give you the example about downloading ebook. So you will have to pay it directly to the government in RCM. Transportation of passenger by radio taxi. So just this is the point of services you can see. First is GTA, Goods Transport Agency. Second is any you have made any unregistered dealer to registered dealer. अगर आप रजिस्टर हो, मैंने आपको एग्जांपल दिया था इसमें कि अगर आप रजिस्टर हो और सामने वाला अनरजिस्टर है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. तो ये RCM में आ रहा है. सर्विस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट. अगर सर्विस आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अगर आपको कोई सर्विस दे रहा है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. वो लोग टैक्स नहीं पे करेंगे, आपको RCM में पे करना पड़ेगा. सेम वे अगर एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट अगर आपको लीगल सर्विस दे रहे हैं
जैसे कि कल मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि वो मिस्टर खान है, वो एयरटेल एंड सन्स को लीगल सर्विस दे रहा है। तो ये सिचुएशन में टैक्स किसको लग रहा है? कौन टैक्स पे करेगा? एयरटेल एंड सन्स। ओके। एंड इंश्योरेंस एजेंट सर्विस सप्लाई टू इंश्योरेंस बिजनेस। अगर कोई भी इंश्योरेंस एजेंट है, अगर वो सप्लाई दे रहा है, लेकिन वो भी कुछ सर्विस दे रहा है, अगर इंश्योरेंस बिजनेस वालों को दे रहा है, तो इंश्योरेंस एजेंट को रिवर्स चार्ज, यहाँ पे रिवर्स चार्ज पे इंश्योरेंस बिजनेस टैक्स पे करेगा। फिर अगर कोई रिकवरी एजेंट है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, अगर वो लोग सर्विसेज दे रहे हैं आपको, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स वगैरह अगर लोन वगैरह दे रहे हैं, या फिर रिकवरी एजेंट है जो लोन वगैरह रिकवरी करते हैं, अगर ऐसे कोई सिचुएशन है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज में। एंड लास्ट इज इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। ये स्लाइड कल नहीं था, ये स्लाइड आज है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। है तो सेम ही, लाइक ये लिस्ट जो है वो आरसीएम का लिस्ट ही है, लेकिन सर्विस का है लिस्ट ही। ओके। सो हम लोग ने ये भी देखा था जीटीए का, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ये लोग कंसाइनमेंट नोट इशू करने चाहिए। फिर लीगल सर्विस का एग्जांपल दिया था, ये मिस्टर खान ने बिल इशू किया है 20 लाख का। ठीक है। सो ये सिचुएशन में एयरटेल एंड सन्स को पेमेंट करना पड़ेगा। यार आउटसाइड में है, आप लोग रिसिपिएंट इंडिया में हो, दैट मीन्स इम्पोर्ट ऑफ सर्विस हो रहा है, सो यू हैव टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। दिस इज द जीएसटी ऑन सर्विस बाय डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी टू द सेड कंपनी, लाइक जो भी है। अगर डायरेक्टर आपको यहाँ पे कुछ सर्विस दे रहा है, तो यहाँ पे कंपनी को रिवर्स चार्ज होकर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सर्विस दे रहा है, सर्विस जो ले रहा है उसको टैक्स पे करना है ना रिवर्स चार्ज में। तो डायरेक्टर सर्विस दे रहा है, जिसको मिल रहा है वो टैक्स पे करेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, लाइक रिम्यूनरेशन वगैरह जो भी है, यहाँ मैंने आपको बताया था परसेंटेज 18% ही रहेगा सर्विस को। फिर इसका फुल फॉर्म क्या था? OIDAR का फुल फॉर्म क्या है? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस सर्विस रिट्राइवल। ठीक है। ये information database access and retrieval services. It's a category of services where the service provided through internet and received by the recipient online through internet. This is the online services. So example I have given you, ई बुकिंग ऑनलाइन। अगर आपने ई बुक डाउनलोड किया है, करते हैं ना सब लोग, ऑनलाइन बुक पढ़ना है तो ई बुकिंग कर लेते हैं। फिर और भी आपने कोई इन्फॉर्मेशन लिया है ऑनलाइन, क्या ऐप डाउनलोड किया है, तो उसका आपका लग जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर देखा था बाय रेडियो टैक्सी। तो हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था कि ड्राइवर अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे सर्विस रिसीवर कौन है? ओला। तो यहाँ पे सिचुएशन पे ओला टैक्स पे करेगा, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दिया था ये आरसीएम में क्यों है, क्योंकि ओला की कंपनी रजिस्टर है, उनको पकड़ना इजी रहेगा। ड्राइवर को कहाँ ढूंढोगे आप लोग जो सर्विस दे रहा है उसको? नॉर्मल अगर ये सब चीज़ को नॉर्मल में रखा होता, मतलब ड्राइवर को पे करना पड़ता जीएसटी, अभी ड्राइवर को कहाँ ढूंढने जाएंगे अगर उसने नहीं पे किया तो। इसके लिए इसको रिवर्स चार्ज में डाला है कि ओला वाले रजिस्टर कंपनी है, उसको आप ढूंढ भी सकते हो। उसके बाद उन्होंने एडवांस पेमेंट का देखा था। नॉर्मल सिचुएशन में एडवांस पे जीएसटी लगता है क्या? नहीं नहीं, नहीं। मैंने आपको बताया था कि अगर आप गुड्स ले रहे हो या सर्विस ले रहे हो, डिपेंड करता है। अगर आपने गुड्स खरीदने के लिए एडवांस पैसा दिया है, नॉर्मल केस की बात कर रही हूँ, अगर आपको गुड्स खरीदना है और आपने गुड्स खरीदने के लिए पैसे दिए हैं, तो जीएसटी आपको नहीं देना है यहाँ पे, नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। एडवांस रिसीप्ट पे जीएसटी नहीं लगेगा अगर आप गुड्स खरीदना चाहते हो तो। लेकिन अगर आपने मुझे कोई सर्विस देने के लिए एडवांस पैसा दिया है, जैसे कि मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था, कोई स्टूडेंट्स ने मुझे पैसे दिए एडवांस कि मैम आप मुझे नेक्स्ट ईयर पढ़ाओ, सो ये सिचुएशन में मुझे जीएसटी लगेगा। सो अगर उसने मुझे 5000 एक्स्ट्रा दिया है, तो मैं उससे 5000 एक्स्ट्रा उसने जो दिया है, मैं उससे एक्स्ट्रा जीएसटी नहीं मांगूंगी। मैं अज्यूम करूंगी कि 5000 के अंदर ही जीएसटी है, 18% इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है। सो एडवांस में क्या होता है, इंक्लूसिव ही रहेगा आपका जीएसटी का अमाउंट। ओके। सो नॉर्मल सिचुएशन पे अगर आप गुड्स खरीदने के लिए पैसे एडवांस दे रहे हो, जीएसटी नहीं लगेगा। आप समझना कि आपने जीएसटी अभी तक पे नहीं किया है, जब तक आप पूरा सामान कंज्यूम नहीं कर लेते तब तक। क्लियर हुआ ये?
लेकिन अगर आप एडवांस पेमेंट नॉर्मल की बात नहीं करेंगे, रिवर्स चार्ज की अगर आप बात करोगे, तो आप अगर आप गुड्स खरीदने के लिए पैसा दो या सर्विस के लिए आप पैसा दो, जीएसटी लगेगा। इन शॉर्ट, अगर नॉर्मल सिचुएशन में सिर्फ गुड्स पे सर्विस नहीं, गुड्स पे जीएसटी नहीं लगेगा अगर आपने एडवांस पेमेंट दिया है तो। बिफोर सब पे लगता था, इट वाज बिफोर सब पे हम लोग लगा देते जीएसटी। बट ये जो नया नया रूल आया है उसमें गवर्नमेंट क्या बोल रही है, अगर आप गुड्स खरीदने के लिए पैसे दे रहे हो एडवांस, जीएसटी मत दो। लेकिन अगर आप रिवर्स चार्ज में आते हो तो वो सब जीएसटी लगेगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट हम लोगों ने देखा था। फिर नेक्स्ट हम लोग को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट देखना था। मैंने आपको कल पूछा था कि इम्पोर्ट पे क्या लगता है। अगर आप कोई भी सामान इंपोर्ट करोगे तो इंपोर्ट पे हम लोग आईजीएसटी लगाते हैं, लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो जीएसटी नहीं लगेगा। आपने मुझे कल जवाब दिया था कि आईजीएसटी लगेगा एक्सपोर्ट पे, जबकि एक्सपोर्ट पे आईजीएसटी नहीं लगेगा। बिकॉज हमारा जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये किस पे लग रही है? इट्स कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। इंपोर्ट का तो समझ में आया, आईजीएसटी हम लोग क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोग बाहर से सामान खरीद के ला रहे हो इंडिया में, तो कंजम्पशन कहाँ करोगे? इंडिया में करोगे, तो टैक्स आपको इंडिया में देना है, इसके लिए आईजीएसटी लगाया। लेकिन एक्सपोर्ट पे कंजम्पशन कहाँ होगा? एक्सपोर्ट मीन्स आप लोग इंडिया से गुड्स बाहर भेज रहे हो अदर कंट्री में, तो एक्सपोर्ट कहाँ होगा? कंजम्पशन कहाँ होगा? अदर कंट्री में होगा। जब कंजम्पशन ही अदर कंट्री में हो रहा है तो गवर्नमेंट कैसे चार्ज ले सकती है? क्योंकि जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, राइट? मैंने बात किया फर्स्ट लेक्चर में, आपको बताया था। सो फिक्स करो यहाँ पे कि इंपोर्ट पे आईजीएसटी आपको लगेगा, एक्सपोर्ट कर रहे हो तो जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर हो गए? क्योंकि एक्सपोर्ट का रीजन क्या बताया मैंने आपको जीएसटी नहीं लगने का? क्योंकि नो कंजम्पशन आउटसाइड कंजम्पशन। इंडिया है। यस, कंजम्पशन Consumption आउटसाइड इंडिया outside the में। India. यस, कंजम्पशन आउटसाइड द इंडिया। क्लियर हो गया ये? सो इंपोर्ट पे आईजीएसटी, Yes. एक्सपोर्ट पे जीरो रेटेड सप्लाई, जिस पे एक्सपोर्ट पे हम लोग जीएसटी नहीं लेंगे। अगर जहां पे एक्सपोर्ट हो रहा है अगर वहां पे जीएसटी होगी तो वो गवर्नमेंट चार्ज करेगी। लेकिन हम लोग को पता नहीं है अभी तक कौन सी कंपनी कहाँ पे एक्सपोर्ट करे, अभी तक ऐसा कुछ भी डिटेल हमारे पास नहीं है। क्लियर हो गया ये? Yes. आप लोग का सब लोग का टैली हो गया है ना? यस मैम। सो आप लोग को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ टैली में सर ने बताया होगा या मैम जो भी होगी उन्होंने बताया होगा ना आपको, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बारे में कुछ बताया था कि नहीं? कुछ याद है कि नहीं आप लोगों को? हाँ हाँ मैम. क्या बताया था? मुझे भी बताओ जरा, टैली सिखाओ मुझे, क्या था? अभी इतना याद नहीं है। ओके ठीक है, सर एक बार देख लेना वहां पे आया क्या था। ओके ठीक है, तो आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो ना, मतलब तो जीएसटी भी भूल जाओगे नहीं, अगर रिवाइज नहीं किया तो। हमने रिवाइज के बाद में एग्जाम हो गया, इसके लिए नहीं अच्छा पढ़ा। ऐसा। मैम देखिए हम लोग का तो ऑनलाइन लेक्चर हो गया है टैली का, बट प्रैक्टिकल्स तो ऑनलाइन पॉसिबल ही नहीं है, समझ में ही नहीं आ रहा था कुछ। यस, प्रैक्टिस तो आपको घर पे ही करना है, कैसे करोगे आप लोग ऑनलाइन, तो कैसे हाँ होगा? बट अगर सोर्स लाइक लैपटॉप पीसी अगर अवेलेबल रहता तो प्रैक्टिस हो जाता था। बट अगर टैली सिर्फ ऑनलाइन हुआ तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, एंट्रीज वगैरह। ओके, तो फिर आपको जीएसटी का लास्ट चैप्टर कैसे आएगा समझ में? मैम आ अभी तो जाएगा, चलो मैं मेरे सिखा पास दूंगी। पीसी अवेलेबल हो गया। हाँ ठीक है, तो भी डोंट वरी, मैं सिखा दूंगी कैसे भी आपको, यस। समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, सो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ मैम. यस मैम। ओके, सो इम्पोर्ट पे आईजीएसटी लगेगा, एक्सपोर्ट पे जीएसटी नहीं लगेगा। रीजन इज कंजम्पशन आउटसाइड इंडिया में हो रहा है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है टाइम ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट टॉपिक इज, आप यहाँ पे देख सकते हो एज वी हैव सीन अर्लियर कि टैक्सेबल इवेंट मेरा जो है क्या था? टैक्सेबल इवेंट इज माय सप्लाई। मतलब मैंने आपको जो सेकंड टॉपिक में बताया था कि अगर ये मेरा टैक्सेबल इवेंट है सप्लाई, अगर आप इसको सप्लाई बोल रहे हो मतलब इस पे आपको टैक्स पे करना है। क्लियर? बेसिक वो मैंने आपको बताया ना, टैक्सेबल इवेंट जो है वो सप्लाई है मेरा। यहाँ पे मैंने घड़ी रखा है, मतलब कौन से टाइम पे मैं पे करूं। मतलब अगर मेरे को ये समझ में आ गया कि सप्लाई को टैक्सेबल इवेंट बोला गया है, फिर लेकिन मैं कौन से टाइम पे गवर्नमेंट को टैक्स पे करूं, बट एट विच पॉइंट ऑफ टाइम लाइबिलिटी टू पे जीएसटी, कौन से टाइम पे? मेरे टाइम पे, आपके टाइम पे 1 बजे 2 बजे, कितने टाइम पे? सो यहाँ पे बोला है कि द लाइबिलिटी टू पे जीएसटी अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई।
तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने आपको टाइम ऑफ सप्लाई बताया है, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा. सी द प्रोविजन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ना, इट्स pushes like the tax collection to the earliest point. It's benefit for the government, like because the government can earn tax resources like revenue, tax revenue at earliest possible. जितना हो सके उतना गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी टैक्स कलेक्ट करना चाहती है. तो वो टाइम पे गवर्नमेंट ने एक टाइम बताया है, तो आपको वो टाइम पे टैक्स पे करना है. तो नेक्स्ट इज, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे वही लिखा है कि प्रोविजन जो है टाइम ऑफ सप्लाई लाने का जो प्रोविजन है, इस पर आपको क्लियर हो जाएगा कि हम लोग को कौन से टाइम पे गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना है. अगर मैं इंट्रा स्टेट कर रही हूँ सप्लाई, मुझे सीजीएसटी एसजीएसटी पे करना है. अगर मैं इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कर रही हूँ तो मुझे आईजीएसटी पे करना है. लेकिन कभी सो उसका एक गवर्नमेंट ने टाइम बताया. सो आप देख सकते हो हमारा टॉपिक नेम इज टाइम ऑफ सप्लाई. यस. सो टाइम ऑफ सप्लाई प्रोविजन जो है वो लोग ने एक टाइम फिक्स किया है कि आपको ये टाइम पे आके लाइबिलिटी पे करना है. आपका जो भी जीएसटी का लाइबिलिटी अराइज हो रहा है वो आपको ये टाइम पे करना है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो टाइम ऑफ सप्लाई को दो सेक्शन में बाइफर्केशन किया हुआ है. एक सेक्शन 12 है और एक सेक्शन 13 है. सेक्शन 12 मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज. सेक्शन 13 मतलब यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई दोनों के लिए अलग अलग है. अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो तो पैसा पे करने का टाइम जो आपके ऊपर लाइबिलिटी है उसका सेक्शन अलग है, उसका टाइम अलग है. और सेक्शन 13 में मतलब सप्लाई ऑफ सर्विस, उसका टाइम अलग है. क्लियर हुआ ये आप लोग को? हम लोग सेक्शन 12 पहले देखते हैं, फिर सेक्शन 13 देखेंगे, धीरे धीरे हम लोग देखेंगे. जैसे कि अगर आप देखोगे तो सेक्शन 12 के अंदर भी ये लोग ने अलग अलग बाइफर्केशन किए हुए हैं. जैसे कि अगर आप नॉर्मल चार्ज में हो, क्योंकि रिवर्स चार्ज नॉर्मल चार्ज अलग अलग है ना, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अगर आप नॉर्मल चार्ज में हो तो कौन से टाइम पे आप टैक्स पे करोगे, अगर आप रिवर्स चार्ज में हो तो कौन से टाइम पे देखोगे. तो वो सेक्शन 12 जो है ना वो सप्लाई ऑफ गुड्स है. तो इसके बाद ये लोग ने क्या किया है, सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर ही बाइफर्केशन की है कि अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो लेकिन आप नॉर्मल केस में हो तो सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 लगेगा. लेकिन अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो तो सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 लगेगा. ऐसा है यहाँ पे. अगर आप यहाँ पे देखोगे ना सेक्शन 12 और सेक्शन 13 के अलावा भी एक सेक्शन है जिसको बोलते हैं सेक्शन 14. ये आपको जो टाइम ऑफ सप्लाई बताएगा इन केस वेयर देयर इज अ चेंजेस इन रेट ऑफ टैक्स इन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब अगर आपने सेल करने के टाइम पे, सप्लाई करने के टाइम पे अगर वहां पे चेंजेस इन रेट होता है तो सेक्शन 14 अपना अलग से एक टाइम बताया है. जैसे कि फॉर एग्जांपल से मैं आपको आज ऑर्डर देके गई कि मुझे 2 मोबाइल चाहिए, फॉर एग्जांपल से 2-3 मोबाइल चाहिए मुझे, तो मुझे 3 मोबाइल चाहिए. आज रेट है 15,000 रुपये के हिसाब से. मैंने उसको दे दिया, मैं आपको कल आके लेके जाऊंगी, ऐसा मैंने उसको बोला. फिर आप कल जब जा रहे हो ना लेने के लिए, या फिर आप लेट हो गए, कल नहीं गए, आप 1 हफ्ते के बाद गए, आपको बीच में दूसरा कुछ काम आ गया, आप 1 हफ्ते के बाद गए. तो जब आप 1 हफ्ते के बाद गए ना, तो आपने उसको बोला हाँ सर वो 3 मोबाइल जो मैंने आपको मांगे थे वो पैक कर दो. तो उसने बोला ठीक है 60,000 दे दो मुझे. ये बोला 60,000 क्यों, 45,000 ही हो रहा है, अपना 15,000 में बात हुआ था. 15,000 में 1 मोबाइल आएगा, उसमें 3 मोबाइल लिए तो 45,000 होना चाहिए. उसने आपसे 60,000 मांगा. क्यों? वो बोल रहा है सर भाव बढ़ गया मोबाइल का. यार कल मैं आप अभी तो पूछ के गया था, मैं बोल के गया था आपको 3 लेना है मुझे. अरे आप बोल के गए थे वो बात बरोबर है, लेकिन अभी क्या हुआ, आप 1 हफ्ते बाद आ रहे हो, तब तक टाइम बढ़ा दिया. यहाँ पे जो अमाउंट था वो बढ़ गया. तो ये सिचुएशन में क्या होगा, आपने बुकिंग पहले किया था तो उसने हो सकता है आपके नाम से बिल बना दिया हो, लेकिन जब आप सामान खरीदने के लिए गए और सामान जब रिसीव कर रहे हो तभी आपका रेट चेंज हो गया. तो उसका क्या, तो सेक्शन 14 बताएगा. वो जिस पॉइंट है यहाँ पे जिस लोग ने कवर अप किया है, तभी आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए, अगर आपका रेट चेंज हो जाता है तो फिर कैसा होगा, वो सब आपको यहाँ पे बताया हुआ है. ठीक है. सो नेक्स्ट हम लोग एक काम करते हैं, पहले हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई का सेक्शन 12 देखते हैं जो नॉर्मल चार्ज के लिए है. नॉर्मल चार्ज मतलब आप इसको फॉरवर्ड चार्ज भी बोल सकते हो. एक दो चीज है, या तो नॉर्मल बोलो या तो फॉरवर्ड बोलो, और रिवर्स चार्ज तो है ही. क्लियर? सो हम लोग पहले देखते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड सेक्शन 12 सबसेक्शन 2. ये जो सेक्शन 12 और सबसेक्शन 2 है ना, ये नॉर्मल चार्ज की बात करिए, फॉरवर्ड चार्ज की बात करिए. अगर आप गुड्स बेच रहे हो, टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स अगर हो रहा है
तो उसका टाइम बताया ये अब कभी टैक्स पे करने का। तो यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। मतलब आपका डेट ऑफ पेमेंट इनवॉइस का डेट क्या है, जैसे कि मैंने आपको आपको सिचुएशन बताया, जैसे कि मेरे को 3 मोबाइल लेना है, ठीक है, तो उसने मेरे नाम से आज बिल बना दिया, लेकिन मैं 1 हफ्ते बाद आ रही हूँ लेने के लिए, तो पेमेंट कब करूंगी मैं? 1 हफ्ते बाद। तो ये सिचुएशन ने यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बोला है, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, मतलब जब बिल बना तब और आपने पेमेंट दिया तब, उन दोनों में जो भी डेट पहले होगा, जो भी टाइम पहले आया है, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है, विच एवर इज अर्लियर। फॉर एग्जाम्पल से डेट ऑफ इनवॉइस आपका है आज का है, जैसे कि आज का जो डेट है वो क्या है 23 सितंबर। तो 23 सितंबर को आप 23 को आपने इनवॉइस बना दिया कस्टमर के नाम से, बट कस्टमर 27 को आ रहा है आपके पास, तो भी 23 आपका 23 सितंबर और 27 सितंबर विच एवर इज अर्लियर? 23 डेट ऑफ 23 इनवॉइस। सितंबर, यस, डेट ऑफ इनवॉइस। दैट मीन्स टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स यहाँ पे जो आएगा इन नॉर्मल सिचुएशन, दैट इज डेट ऑफ इनवॉइस, दैट इज 23 सितंबर, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। मतलब आपको आज ये जो ट्रांजेक्शन हुआ इसका डेट क्या रहेगा? 23 सितंबर। मतलब ये 23 ट्रांजेक्शन पे आपको जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, दैट विल बी ऑन 23 सितंबर। आपको 23 सितंबर को टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो ये टाइम है, ये क्लियर हुआ आपको? तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। Yes. मतलब अगर आप नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहे हो, तो नॉर्मल सिचुएशन में आपको टाइम चेक करना है गुड्स के लिए, तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, मतलब बिल पहले आपने बनाया या पेमेंट पहले आया, जो भी पहले आया रहेगा वो। अगर मैं बोलूं, जैसे देखिए एग्जांपल कि डेट ऑफ इनवॉइस जो है, जैसे कि एक कस्टमर आया, उसने क्या बोला कि मेरे को 3 मोबाइल चाहिए, फॉर एग्जांपल से 3 वाला ही मोबाइल, 3 मोबाइल चाहिए, 60,000 का बिल बनाया है उसने, बनाया नहीं मतलब 60,000 देना है, उसमें से आपने क्या किया, उसको 40,000 एडवांस दे दी। ठीक है, 40,000 ले लो, मैं मोबाइल परसों आके लेके जाऊंगा, मतलब मैं 25 सितंबर को आके मोबाइल लेके जाऊंगा। पेमेंट कभी हुआ? 23 सितंबर। बिल कभी बनाया उसने? Yes. उसने बिल आपको 25 को ही बना के दिया, मतलब डेट ऑफ इनवॉइस इज 25 सितंबर एंड डेट ऑफ पेमेंट इज 23 सितंबर। तो अब ये सिचुएशन में मुझे टैक्स किस पे लगेगा? डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट नहीं, मैंने आपको अभी वही तो समझाया। आप मतलब आप लोग क्या कर रहे हो, नया याद रख रहे हो, पुराना भूल जा रहे हो, ऐसा लग रहा है मुझे। अभी मैंने आपको एडवांस का सिचुएशन भी तो बताया था, एडवांस पे जीएसटी नहीं लेने का ना, गुड्स खरीदना है तो। Yes. अभी मैंने आपको ये भी सिचुएशन बताया ना, ये वाला किधर गया 1 सेकंड, अभी इसके लिए रिवाइज कराया मैंने वो पॉइंट, एडवांस का जो पॉइंट हम लोगों ने देखा, ये वाला रिवर्स आ जाएगी तो नॉर्मल में आ जाएगी। नॉर्मल सिचुएशन, अगर आप गुड्स खरीदने के लिए एडवांस पैसा दे रहे हो ना, तो जीएसटी नहीं लगेगा, मतलब ये डेट को भूल ही जाओ। फिर आप जब आपने एडवांस पेमेंट दिया ना गुड्स के लिए, तो भूल जाओ, मतलब आपका डेट ऑफ इनवॉइस विल बी आपका डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर हुआ ये? इसके लिए ये याद रखना है, इसलिए मैंने ये Yes. एडवांस का रूल आपको पहले बताया है। ये आप लोग फिट कर लो दिमाग में कि अगर इन नॉर्मल सिचुएशन अगर आप लोग एडवांस पेमेंट दे रहे हो वो भी गुड्स के लिए, तो जीएसटी नहीं लगेगा। सर्विस होता तो मैं, हाँ, अगर आपने बोला तो सर्विस के लिए तो लगता जीएसटी, इंक्लूसिव बेसिस पे लगता, लेकिन इसके ऊपर नहीं लगेगा। क्लियर हुआ आपको पॉइंट ये? Yes. अभी जैसे कि अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया इसमें, ये वाला डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो अभी ये सिचुएशन में आपको एडवांस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है एडवांस का पॉइंट किधर भी, बट वो आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर गुड्स के लिए तो एडवांस नहीं होगा। जैसे कि अगर एग्जांपल लो कि डेट ऑफ इनवॉइस मेरा जो है वो 23 सितंबर को है एग्जांपल, और पेमेंट आपका हो रहा है 25 सितंबर को, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? 23 सितंबर, Date और of पेमेंट invoice. हो रहा है, मैम वापस रिपीट करो ना क्वेश्चन। आपने जो इनवॉइस बनाया डेट ऑफ इनवॉइस इज 23 सितंबर, आपको पेमेंट जो मिल रहा है, डेट ऑफ पेमेंट जो हो रहा है वो हो रहा है 25 सितंबर। सो व्हाट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई? 23 सितंबर।
यस दैट इज द डेट ऑफ इनवॉइस। ये क्लियर हो गया सबको यहाँ पे? Yes. ओके मैम इसके पे हमें जीएसटी नहीं पे करना पड़ेगा ना, क्योंकि क्या? एडवांसली पेमेंट की के लिए नहीं वो तो मैं हमें अभी इसका GST देना एडवांस पड़ेगा का ना। अगर सिचुएशन रहेगा ना तो जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अभी उसमें देखते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास कोई कस्टमर आ रहा है, उसने बोला कि ये लो सर 20,000 रुपीज आप एडवांस में ले लो, ये 20,000 का एक मोबाइल में आपको बाद में लेके जाऊंगा। एग्जाम्पल से कल लेके जाता हूँ, 20,000 उसने मुझे आज दिए, दैट इज 23 सितंबर। लेकिन पेमेंट मुझे आज आया 23 सितंबर को, लेकिन वो मोबाइल जो लेके जाने वाला है वो 25 सितंबर को लेके जाने वाला है। ठीक है, जब वो 24 सितंबर को लेके जा रहा है, पैसा उसने 23 को दिया हुआ है। अभी चेक करूँ जरा यहाँ पे, अपने डेट ऑफ इनवॉइस उसने आपके लिए 24 सितंबर बनाया है उसने बिल, तो डेट ऑफ इनवॉइस इज 24 सितंबर एंड डेट ऑफ पेमेंट इज 23 सितंबर। तो अभी ये सिचुएशन में किस पे टैक्स लगेगा आपको? डेट ऑफ पेमेंट। फिर से डेट ऑफ नहीं मैम, पेमेंट पे टैक्स लगेगा ही नहीं ना। डेट ऑफ इनवॉइस। डेट ऑफ इनवॉइस यस मैं वही बोल रही हूँ, जब एडवांस पेमेंट की बात आ रही है ना कर, तो जब भी एडवांस होगा ना तो आप क्या सोचोगे एडवांस के टाइम पे कि मेरे को एडवांस ऑफ गुड्स के लिए एडवांस मिला तो जीएसटी नहीं लगाना है। Invoice कब बना? जब मैं हाँ इनवॉइस कब बना है वो देखना है आपको। ये क्लियर हो रहा है? Yes. वन सेकेंड, अपन एग्जाम्पल लेते हैं। दिख रहा है ना मेरा? स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? हाँ मैम। हाँ ओके चलो मैं आपको यहाँ पे लिख के एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ तो शायद समझ में आ जाए अच्छी से। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल से डेट ऑफ इनवॉइस जो है वो आज का ले लो 23 सितंबर 2020। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी कस्टमर आ रहा है उसका पेमेंट आपको जो दे रहा है, आपको यहाँ पे पहले ही बता देती हूँ। assume that this is the question। भी यहाँ पे आप लोग को टाइम ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन की बात चल रही है यहाँ पे। जैसे कि फर्स्ट का देखो भैया, फर्स्ट क्या है डेट ऑफ इनवॉइस आपका 23 सितंबर 23/9/2020। ठीक है, आपका पेमेंट कभी हुआ है 27/9 को हो रहा है। सो मैंने अभी आपको वही बताया कि नॉर्मल सिचुएशन में आपको क्या देखना है, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अर्लियर। ओके, सो यहाँ पे चेक करो आपका इनवॉइस जो आपने बनाया है वो कभी बनाया है? 23rd को। यस, अभी डेट ऑफ पेमेंट कभी हो रहा है 27/9 को हो रहा है, तो विच एवर इज अर्लियर? Date of invoice. डेट ऑफ इनवॉइस 23rd सितंबर। यहाँ पे आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? टीओएस टाइम ऑफ सप्लाई दैट इज 23/9।
सो डेट ऑफ इनवॉइस। क्लियर हुआ ये फर्स्ट पॉइंट? हाँ मैम। Yes. सेकंड देखो, आपने इनवॉइस जो बनाया है वो कभी बनाया है? 25 सितंबर को बनाया है। 25th पेमेंट 23/9 को ही आ गया है। Right. तो अभी ये सिचुएशन पे मेरा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? ये एडवांस का केस है, आप सोचो तुरंत ही, बिल बाद में बना है, पैसा पहले आ गया, तो ये सिचुएशन पे बिल जिस दिन बनाया होगा उस दिन आपका टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा, दैट इज Of invoice. डेट ऑफ इनवॉइस। 25th क्लियर हो गया ये पॉइंट? Yes. Yes. थर्ड वाले का डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई बताओ फटाफट। 26 26. 26 of 9. आपने बिल भी उसी दिन बनाया, मतलब ये हो, और पेमेंट भी उसी दिन आ गया, मतलब हो सकता है ये सामने सामने ट्रांजेक्शन हुआ हो, तो आपको टाइम ऑफ सप्लाई भी तुरंत ही देना पड़ेगा गवर्नमेंट को टैक्स। फोर्थ देखो, 23 September. 22 22 23. जो 22 बोल रहा है उसको मतलब अभी तक एडवांस का सिचुएशन समझ में नहीं आया है। एडवांस का केस समझो आप, जैसे कि अगर गुड्स के लिए एडवांस दिया है तो जीएसटी हम उस पे नहीं लगाएंगे, हम जीएसटी कब लगाएंगे? जब वो पर्सन को मैंने बिल बनाया रहेगा और लाइक तभी होगा, ठीक है? दैट इज 23/9। ये सब एडवांस का केस है, आपको याद रखना है। उसके बाद क्या है फिफ्थ वन? Date of invoice. 29 29 है तो। यस, आप विच एवर इज अर्लियर देख रहे हैं ना हम लोग, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, मतलब कोई भी डेट पहले होगी उस पर टैक्स लगेगा। अगर आप लोग ने डीटी पढ़ा होगा तो उसमें इनकम फ्रॉम सैलरी में गवर्नमेंट ने बोला था ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, याद है किसी को? जिसका हुआ है उसकी बात, आधे लोग का नहीं भी हुआ है। तो अभी ये सिचुएशन में गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि जो भी डेट पहले आएगी ना उस पर हमको टैक्स लगेगा, क्योंकि बिल तुम आज बना रहे हो। फॉर एग्जांपल से अगर लास्ट वाला सिचुएशन देखेंगे अगर, तो बिल आपने 29 सितंबर को बनाया, ठीक है? पेमेंट आप 30 को ले रहे हो, आप गलत हो, लाइक आप लेट ले रहे हो, आपको चला रहे हो, हमको नहीं चलेगा। आप लेट पेमेंट हमको नहीं चला सकते हो, हमको जिस दिन बिल बना उस दिन आप जीएसटी दे दो। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? यस। ओके। मैम आपने इधर डीओआई क्यों लिखा है? डीओपी लिखना चाहिए ना। इधर 1 सेकंड, Date of invoice. आप मैम फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट कहाँ पे फर्स्ट बना? वाला मैम फर्स्ट सॉल्यूशन। वन, हाँ डीओपी ना। क्यों डीओपी? 23 इज मैम अर्लियर डेट ना, ऑफ इनवॉइस। हाँ तो 23 मैम सब डीओपी है ना वहाँ पे। नहीं ना, DOI तो भी कंफ्यूजन है। नहीं मैडम पहले अभी क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे बैठ के भी समझते लेना आप लोग कैसे क्या आया, ठीक है? तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा क्या है। ये क्लियर हो गया ना सबको? Yes, ma'am. ये देखते हैं हम लोग, ये आरसीएम का केस है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ही है, बट वो आरसीएम है। पहले हम लोग ने क्या देखा? नॉर्मल सिचुएशन का देखा, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 12(2). इसके पहले जो देखा वो क्या था? सेक्शन सबसेक्शन 2 था, जो नॉर्मल केस की बात चल रही थी। अभी हमको क्या देखना है? सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 जो आरसीएम की बात चल रही है, मतलब यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग रहा है। सो अभी अगर रिवर्स चार्ज भी लग रहा है तो जो रिसिपियर है वो कब टैक्स पे करेगा? तो उसके लिए रूल बनाया है ये। क्या आपने गुड्स कभी रिसीव किया वो देखो, रिसीप ऑफ गुड्स कभी हो रहा है, कौन सी डेट को आपने गुड्स रिसीव किया वो, और जब सामने वाले ने तुमको इनवॉइस बना के दिया है प्लस 30 डेज एक्स्ट्रा। क्या समझ में आया इसमें? मतलब हाँ, जब गुड्स मिला है तभी लो। यस एग्जैक्टली। इनवॉइस सी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के टाइम पे आपको क्या देखना है? आरसीएम में आप तो पहले ये चेक करो, बिकॉज यू आर द कस्टमर, यू आर द रिसीवर, तो आप चेक करो आपको गुड्स कभी आया, कौन सी डेट को आया। सो रिसीव और गुड्स वो देखो, और डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 30 डेज एक्स्ट्रा। अभी यहाँ पे 1 सेकंड, चलो इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं तो
क्लियर हो जाएगा शायद। पहले वाला क्लियर है ना, ये वाला, ये क्लियर है ना? यस। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। इसी को चेंज करूँ तो चलेगा या नया बनाऊं? रहने दो, इसी को अलग से बनाते हैं, नहीं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। चेंज कर लो मैम। चलो ये 4 एग्जांपल लेते हैं। ओके, फर्स्ट वाला, यहाँ पे मैंने आपको सिचुएशन क्या बताया, यहाँ पे देखो, अगर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है, सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 की बात चल रही है, अगर आरसीएम की बात चल रही है, आपको क्या चेक करना है कि रिसीव ऑफ गुड्स कभी हुआ है वो चेक करो, और डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 30 डेज एक्स्ट्रा,